മോദിനെ കാണാൻ പോവാണ്. മഹാത്മജിയും ഗാന്ധിജിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതിന്റെ 100ാമത്തെ സെന്റിനറി സെലിബ്രേഷൻ ആഘോഷിക്കാൻ മോദിയെ കാണാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഈ ഓൺലൈൻ ചാനൽ കാണാൻ നമ്മുടെ
ഗുരവേ നമഃ. നമോ ഭഗവതേ നമോ ഭഗവതേ നിത്യശുദ്ധമുക്തമഹാത്മനെ നിത്യശുദ്ധമുക്തമഹാത്മനെ നാരായണേന്ദ്രായ നാരായണീന്ദ്രായ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നടന്നുവരുന്ന കലാമണ്ഡലത്തിലെ നൃത്ത അധ്യാപികയാണ് ശ്രീമതി മാധുരി. ഗുരുദേവന്റെ ദൈവദശകം തുടങ്ങി കുണ്ടലിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ നിരവധി കൃതികൾ മാധുരി നൃത്തമായി അവതരിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് ദൈവദശകം മോഹിനിയാട്ടമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് 100 വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ ശ്രീമതി മാധുരി എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 100 വേദികളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൈവദശകം ഇന്നിവിടെ 55ാമത്തെ വേദിയാണ്. ശിവഗിരിയിൽ തീർത്ഥാടന വേളയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അവിടെ വെച്ച് നിർവഹിച്ചു. ഗുരുദേവന്റെ കൃതികൾ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാര്യം. മാധുരിയും സംഘവും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, ഈ ഒരു നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടിയിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തത്. മാധുരിയോടൊപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വന്ന രമ്യ എന്ന നർത്തകിയും ഗുരുദേവന്റെ ശിവപ്രസാദ പഞ്ചകം രമ്യ അവതരിപ്പിക്കും. ദൈവദശകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീമതി മാധുരിയെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു.
തോണി നിൻപദം തോണി നിൻപദം ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളും കൈവിടാതിൻ Yellow
Thank you.
കടലിൽ പുരളാതെ കൊടിഞ്ഞു പിടിപ്പതും പൊരുളെന്നോടമ്പോട് മക്കളൊഴിത്തിരടന്നു ഇതൊക്കെ പുരളാതെ കൊടിഞ്ഞു പിടിപ്പതും പൊരുളെന്നോടമ്പോട് മക്കളൊഴിത്തിരടന്നു ഇതൊക്കെ
കരി തട്ടിയെറിഞ്ഞു കരം കഴുകി കനിമുക്തി പടുത്തു ചൊരിഞ്ഞൊഴുകും കനകക്കൊടിയേ കടലേറുകനി കരി തട്ടിയെറിഞ്ഞു കരം കഴുകി കനിമുക്തി പടുത്തു ചൊരിഞ്ഞൊഴുകും കനകക്കൊടിയേ കടലേറുകനി Thank you so much and congratulations, Remya, for your marvelous, wonderful performance. Next, Anjana is on. വർത്തമാനവും
Thank you Anjana and congratulations. On behalf of Sri Narayana Dharma Sangha Trust, I thank Kalamandalam Madhuri, Remya and Anjana for their marvelous performance. Rise up. Thank you all. May I request Swami Sharadananda to honor the Prime Minister with a short. May I request Swami Sachidananda to present a memento to the Honorable Prime Minister as a mark of our love, respect and sincere gratitude. I also request Srimad Swami Shubhamananda to present books to the Honorable Prime Minister. ब्रह्मर्षि स्वामी सच्चिदानंद जी, श्रीमठ स्वामी शुभानंदा जी, स्वामी शारदानंद जी, सभी पूज्य संतगण, सरकार में मेरे साथी जॉर्ज कुरियन जी, संसद में मेरे साथी
शहडूल प्रकाश जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, पिन्ने एंडे एल्ला प्रिय पेटन मलयाली सहोदरी सहोदरन विनितमाय नमस्कारों। आज ये परिसर देश के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना को याद करने का साक्षी बन रहा है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जिसने न केवल हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी, बल्कि स्वतंत्रता के उद्देश्य को, आजाद भारत के सपने को ओस मायने दी। 100 साल पहले श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की वो मुलाकात आज भी उतनी ही प्रेरक है, उतनी ही प्रासंगिक है। 100 साल पहले हुई वो मुलाकात सामाजिक समरसता के लिए, विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्यों के लिए आज भी ऊर्जा के बड़े स्रोत की तरफ है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं श्री नारायण गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं गांधी जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाई बहनों, श्री नारायण गुरु के आदर्श पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। जो लोग देश और समाज की सेवा के संकल्प पर काम करते हैं, श्री नारायण गुरु उनके लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। आप सभी जानते हैं कि समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग से मेरा किस तरह का नाता है, और इसलिए आज भी मैं जब समाज के शोषित, वंचित वर्ग के लिए बड़े निर्णय लेता हूं तो मैं गुरुदेव को जरूर याद करता हूं। 100 साल पहले की वो सामाजिक हालत, सदियों की गुलामी के कारण आई विकृतियां, लोग उस दौर में उन बुराइयों के खिलाफ बोलने से डरते थे, लेकिन श्री नारायण गुरु ने विरोध की परवाह नहीं की। वो कठिनाइयों से नहीं डरे, क्योंकि उनका विश्वास समरसता और समानता में था। उनका विश्वास सत्य, सेवा और सौहार्द में था। यही प्रेरणा हमें सबका साथ, सबका विकास का रास्ता दिखाती है। यही विश्वास हमें उस भारत के निर्माण के लिए ताकत देता है जहां अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है। साथियों, शिवगिरी मठ से जुड़े लोग और संत जन भी जानते हैं कि श्री नारायण गुरु में और शिवगिरी मठ में मेरी कितनी अगाध आस्था रही है। मैं भाषा तो नहीं समझ पा रहा,
लेकिन पूज्य सच्चिदानंद जी बातें बता रहे थे, वो पुरानी सारी बातें याद कर रहे थे। और मैं भी देख रहा था उन सब बातों पर आप बड़े भाव विभोर होकर के उसके साथ जुड़ जाते थे। और मेरा सौभाग्य है कि मठ के पूज्य संतों ने हमेशा मुझे अपना स्नेह दिया है। मुझे याद है 2013 तब तो मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, जब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदा आई थी, तब शिवगिरी मठ के कई पूज्य संत वहां फंस गए थे, कुछ भक्तजन भी फंस गए थे। शिवगिरी मठ ने वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार का संपर्क नहीं किया था। प्रकाश जी बुरा मत मानना। शिवगिरी मठ ने, मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था, मुझे आदेश दिया और इस सेवक पर भरोसा किया कि और ईश्वर कृपा से सभी संत, सभी भक्तजन को सुरक्षित में ला पाया था। साथियों, बैठे मुश्किल समय में हमारा सबसे पहला ध्यान उसकी ओर जाता है जिसे हम अपना मानते हैं, जिस पर हम अपना अधिकार समझते हैं। और मुझे खुशी है कि आप अपना अधिकार मुझ पर समझते हैं। शिवगिरी मठ के संतों के इन अपनेपन से ज्यादा आत्मिक सुख की बात मेरे लिए और क्या है। साथियों, मेरा आप सबसे एक रिश्ता काशी का भी है। वर्कला को सदियों से दक्षिण की काशी भी कहा जाता है। और काशी चाहे उत्तर की हो या दक्षिण की, मेरे लिए हर काशी मेरी काशी ही है। साथियों, मुझे भारत की आध्यात्मिक परंपरा, ऋषियों और मुनियों की विरासत, उसे करीब से जानने और जीने का सौभाग्य मिला है। भारत की विशेषता है कि हमारा देश जब भी मुश्किलों के भंवर में फंसता है, कोई न कोई महान विभूति देश के किसी कोने में जन्म लेकर समाज को नई दिशा दिखाती है। कोई समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में समाज सुधारों को गति देता है। श्री नारायण गुरु ऐसे ही महान संत थे। निवृत्ति पंचकम और आत्मोपदेश शतकम जैसी उनकी रचनाएं, ये अद्वैत और अध्यात्म के किसी भी स्टूडेंट के लिए गाइड की तरह है। साथियों, योग और वेदांत, साधना और मुक्ति नारायण गुरु के मुख्य विषय थे। लेकिन वो जानते थे कि कुरीतियों में फंसे समाज का आध्यात्मिक उत्थान उसके सामाजिक उत्थान से ही संभव होगा। इसलिए उन्होंने अध्यात्म को समाज सुधार और समाज कल्याण का एक माध्यम बनाया।
श्री नारायण गुरु के ऐसे प्रयासों से गांधी जी ने भी प्रेरणा पाई, उनसे मार्गदर्शन लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विद्वानों को भी श्री नारायण गुरु से चर्चा का लाभ मिला। साथियों, एक बार किसी ने श्री नारायण गुरु की आत्मोपदेश शतकम रमण महर्षि जी को सुनाई थी। उसे सुनकर रमण महर्षि जी ने कहा था, अवर एल्लाम पेरिंजवर, यानी वो सब कुछ जानते हैं। और उस दौर में जब विदेशी विचारों के प्रभाव में भारत की सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को नीचा दिखाने के षड्यंत्र हो रहे थे, श्री नारायण गुरु ने हमें ये एहसास कराया कि कमी हमारी मूल परंपरा में नहीं है। हमें अपने अध्यात्म को सही अर्थों में आत्मसात करने की जरूरत है। हम नर में श्री नारायण को, जीव में शिव को देखने वाले लोग हैं। हम द्वैत में अद्वैत को देखते हैं, हम भेद में भी अभेद देखते हैं, हम विविधता में भी एकता देखते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं श्री नारायण गुरु का मंत्र था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्य। यानी पूरी मानवता की एकता, जीव मात्र की एकता, ये विचार भारत की जीवन संस्कृति का मूल है, उसका आधार है। आज भारत उस विचार को विश्व कल्याण की भावना से विस्तार दे रहा है। आप देखिए, अभी हाल ही में हमने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस की थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक धरती एक स्वास्थ्य। इसके पहले भी भारत ने विश्व कल्याण के लिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ जैसे इनिशिएटिव शुरू किया है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में वन सन, वन अर्थ, वन ग्रिड जैसे ग्लोबल मूवमेंट को भी लीड कर रहा है। आपको याद होगा 2023 में भारत ने जब G20 समिट को होस्ट किया था, हमने उसकी भी थीम रखी थी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारे इन प्रयासों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जुड़ी हुई है। श्री नारायण गुरु जैसे संतों की प्रेरणा जुड़ी हुई है। साथियों, श्री नारायण गुरु ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो भेदभाव से मुक्त हो। मुझे संतोष है कि आज देश सेचुरेशन अप्रोच पर चलते हुए भेदभाव की हर गुंजाइश को खत्म कर रहा है। लेकिन आप 10-11 साल पहले के हालत को याद करिए। आजादी के इतने दशक बाद भी करोड़ों देशवासी कैसा जीवन जीने को मजबूर थे। करोड़ों परिवारों के सिर पर छत तक नहीं थी। लाखों गांवों में पीने का साफ पानी नहीं था। छोटी छोटी बीमारी में भी इलाज कराने का विकल्प नहीं। गंभीर बीमारी हो जाए तो जीवन बचाने का कोई रास्ता नहीं।
करोड़ों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं मूलभूत मानवीय गरिमा से वंचित थे। और ये करोड़ों लोग इतनी पीढ़ियों से इन कठिनाइयों में जीते चले आ रहे थे कि उनके मन में बेहतर जिंदगी की उम्मीद तक मर चुकी थी। जब देश की इतनी बड़ी आबादी ऐसी पीड़ा और निराशा में थी, तब देश कैसे प्रगति कर सकता था? और इसलिए हमने सबसे पहले संवेदनशीलता को सरकार की सोच में ढाला। हमने सेवा को संकल्प बनाया। India is here. Sir, I request you to come over to this day. Shri V. Muralidharan, former Union Minister, is also here. Sir, please. Srimad Swami Shalabananda is here.